Hello everyone, this is Abhishek Mahanti and you are watching Padat Vigyan. So friends, आज भिडियो रे आमे 2018 मसीहार ओएवीएस पीजीडी फिजिक्स क्वेश्चन रो क्वेश्चन नंबर 21 रो 40 पर्यंत सॉल्व करिबा. So let's begin. Look at the first question number 21. Question kon देछि S1 and S2 are two parallel concentric spherical surfaces enclosing charges Q and 2Q respectively. What is the ratio of the electric flux through S1 and S2? So this question is based on the concept of Gauss law. आमे जानिचे Gauss law कौन कहूची ना the electric flux linked with a closed surface is equal to Q enclosed divided by epsilon naught. So question रे कौन देइची ना we have two concentric spherical surfaces S1 and S2. So concentric रा meaning कौन the two spheres have the same center. तो एटा होची S1 एटा होची S2. S1 भितरे Q अमाउंट चार्ज अच्छी S2 भितरे 2Q अमाउंट चार्ज अच्छी तमे बाहर करबा जे व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फ्लक्स थ्रू S1 टू दैट ऑफ S2 तमे phi S1 डिवाइडेड बाय phi S2 अबे बाहर करबा. तो देखो एटी S1 थ्रू जो फ्लक्स जीवो तार वैल्यू केते आसे तार वैल्यू आसीबो Q बाय एप्सिलॉन नॉट बिकॉज़ S1 भितरे Q अमाउंट चार्ज अच्छी. बट जदि हम S2 देखिबा S2 चार्ज को S2 स्फीयर केते चार्ज एनक्लोज करूची ना it encloses 2Q charge as well as it is enclosing the surface S1 which have charge Q1. तब the total charge enclosed by the surface S2 will be 3Q. तो flux केते हेजिबो flux हेजिबो 3Q by epsilon naught तो एटा कटिला परे Q by 3Q एटा हेजिबो तो एटा हेजिबो 1 by 3 हेजिबो तब ऑप्शन 2 is the correct one. Next question कोन देछि number 22. The dielectric constant of argon at 0 degree Celsius is 1.000435. Calculate the polarizability of its atom and एठी n ର value केते कहैछि मतलब number of atoms per meter square केते कहैछि एठी 0.267 into 10 to the power 26. तो एटा एक्चुअली होबा कथा number of atoms per cubic meter होबा कथा एटा per meter square दे दिछि. ठीक अछि हमर फार्मूला कोन polarizability रो फार्मूला कोन एटा होछि आके लिखिबा alpha माने polarizability. The formula is epsilon naught into epsilon r minus 1 divided by n. तम जानिचे the value of epsilon naught is 8.854 into 10 to the power minus 12 and epsilon r माने relative permittivity by dielectric constant जार value केते कहि 1.000435 कहि दैछि and n र value केते कहि 0.267 into 10 to the power 26. तो जदि हमें ए सब वैल्यू को पुट करबा ए फार्मूला रे पुट करबा हमें पाइबो ऑप्शन 3 एज द आंसर. सो यू कैन डू इट योरसेल्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि ना कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेव्स. इट एक्चुअली वेवलेंथ हबो द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ ए प्रोटॉन टू दैट एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन each having a kinetic energy of 20 mega electron volt. ता माने प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन both have the same kinetic energy. We have to find the ratio of their de Broglie wavelength. तो मन रखो जे de Broglie wavelength रो फार्मूला कोन एटा होची h by momentum माने h by mv. बट जदी kinetic energy टर्म्स हम लिखिबा तो लैम्बडा केते हबो लैम्बडा हे जिवो h by 2m e स्क्वायर रूट. ठीक अछि. तो जेहेतु एठी कोन होची ना दुईटा को जो पार्टिकल अछि गोटेला प्रोटॉन गोटे होची इलेक्ट्रॉन. Proton and electron have the same kinetic energy. As per the question, they have the same kinetic energy. तमने E constant, H भी constant, 2 भी constant. तमने हमें कहि परिबा जे for this problem lambda is inversely proportional to square root of mass. तो हमें तरा lambda P by lambda E बाहर करिबा माने the de Broglie wavelength of proton divided by the de Broglie wavelength of electron. तो lambda P by lambda E केते आसीबो एटा आसीबो me by mp square root. ठीक अछि. हमें जानिचे जे द मास ऑफ प्रोटॉन इज अराउंड 1700 ना 1860 टाइम्स ग्रेटर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो हमें दिस से वैल्यू को पुट करिबा हमर आंसर केते आसीबो आंसर आसीबो 1:43. ठीक अछि. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा नंबर 24. क्वेश्चन कोन दैछि ना ए पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम ए हाइट h at a certain height. Its kinetic energy is 2 times the potential energy. The height and speed of the particle at that instant are dash. देखो एटा होची मोशन अंडर ग्रेविटी क्वेश्चन टा. सपोज इमेजिन करो एटा होची ग्राउंड लेवल एंड एठी गोटे हाइट h रु आमे गोटे ऑब्जेक्ट को माने थ्रो करिबा माने ताको ड्रॉप करिबा. सो दिस हाइट इज h
ठीक अच्छे। सो इनिशियली द ऑब्जेक्ट वाज एट दिस पॉइंट आपको मुझे ए पॉइंट कहीदेली तो जिते से हाइट ए थी इट इज एट रेस्ट सो इट हैज नो काइनेटिक एनर्जी इट हैज ओनली पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mgh बट व्हेन द पार्टिकल इज फॉलिंग डाउनवर्ड कौन हो धीरे धीरे तार स्पीड बढ़ी बढ़ी जीवो सो द काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज एंड एट द सेम टाइम the height of the particle from the ground level will decrease तमाने its potential energy will reduce तमाने एठी कोन होची there is conversion of energy from potential to kinetic तो से पचारची जे at a certain height माने suppose गोटे particular height रे कोन होची ना the kinetic energy is 2 times the potential energy तमाने मन करा ए जो पॉइंट बी रे जेतरा से पार्टिकल पहुंचीबो सो ए पर्टिकुलर पॉइंट रे कोन होची द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज ट्वाइस बा डबल ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी तमे बाहर करबा से हाइट ता केते और सेही हाइट रे तार स्पीड केते हबो तो इमेजिन करो ए रु बी रो डिस्टेंस जदि हमको x नै जिबा तो हाइट केते हबो ग्राउंड लेवल रु एटा हे जिवो h - x हे जिवो ठीक अछि तो एबे देखो ए जो पॉइंट बी रे व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एटा हे जिवो m g into h minus x आउ से पॉइंट रे केते हो काइनेटिक एनर्जी सेटा हे जिवो m g into x काहे कि मन रखिताओ at every point during its fall the sum of kinetic energy and potential energy will be constant that is m g h तमने जित्ती की अमाउंट रो पोटेंशियल एनर्जी लॉस हबो सेति की अमाउंट रो काइनेटिक गेन हबो तो जेहेतु m g x अमाउंट रो पोटेंशियल एनर्जी लॉस होउची तमने that is the gain in kinetic energy so as per the question the kinetic energy is twice of the potential energy तो आमे लिखि परिबा जे mgx is equal to 2 into mgh minus x तो एठी mg कैंसिल हे जिवो तो x आमे केते पाइले 2h minus 2x that implies 3x केते हबो 3x हे जिवो 2h बा x केते हबो x हे जिवो 2h by 3 ओके तो आमे देखिबा x जदि 2h by 3 बाहरुची व्हाट इज द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड हाइट होची h minus x त माने h minus 2h by 3 तो आंसर के आसीबो आंसर जो h by 3 ठीक अछि तो h by 3 हाइट रे तीनटा ऑप्शन अछि 1 2 आउ 4 अछि तबे नेक्स्ट बाहर करबा व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट त माने जेते पार्टिकल अछि पॉइंट बी रे पहुंचबे तार स्पीड केता हबो तो मन रख जदि आम गोटे हाइट रु गोटे बॉडी को ड्रॉप करुचे जदि सी x हाइट खसी जाउची x डिस्टेंस से फॉल करुचे तो तार केते हबो स्पीड v केते हे जबो 2gx रो स्क्वायर रूट एठी अप्लाई करि परिबा को फार्मूला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as अप्लाई कर दबा तो u तो 0 थला हाईएस्ट पॉइंट रे u 0 थला तो v स्क्वायर केते हबो 2 into g into s से x बाटा खसीची तो 2gx पकेले v केते v हे जबो रूट ओवर ऑफ 2gx तो एटा केते हबो 2 into g into x केते x हम पाइले 2h by 3 ठीक अछि तार स्क्वायर रूट नै जिबा तो आंसर केते आसीबो आंसर आसीबो 2 into gh by 3 स्क्वायर रूट ला तो माने ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन तो अब हम निबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 सो क्वेश्चन नंबर 25 इज बेस्ड ऑन ब्रैग्स लॉ से कोन कहै छै ना ए बीम ऑफ एक्स-रे विथ लैम्बडा इक्वल टू लैम्बडा केते कहला 0.842 angstrom is incident on a crystal at a glancing angle of 8 degree 35 minute when the first order of Bragg diffraction not reflection Bragg diffraction occurs calculate the glancing angle for the third order reflection by diffraction देखो एटी तो एटा में कोन करबा मन रखता Bragg's law of formula कोन 2d sin theta is equal to n लैम्बडा तो से क्वेश्चन में कहि छि जते बळे थीटा होउछि केते 8 डिग्री 35 मिनिट तो से केस रे हमें फास्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन पाउछि ठीक अछि तो हमें कोन करबा ए जो फार्मूला रे 2d sin theta equal to n लैम्बडा फार्मूला रे हमें कोन करबा इन प्लेस ऑफ थीटा में ए वैल्यू पुट करबा सो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इट टू रेडियन तो रेडियन रे कन्वर्ट करे कि हमें वैल्यू पकेला परे हमें इन प्लेस ऑफ थीटा में पकेबा दिस वैल्यू इन प्लेस ऑफ n हमें 1 पकेबा लैम्बडा जगह रे एटा पकेबा तमे d बाइ जबा सो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d तापर हमें कोन करबा वंस हमें d पाइ गेला परे
से पचार थर्ड ऑर्डर डिफ्रैक्शन केते हेबो एंगल तार माने n इक्वल टू एम 3 पकेबा अगेन देखिबा 2d sin थीटा केते n लैम्बडा तो sin थीटा केते हे जिवो sin थीटा हे जिवो n लैम्बडा n केते 3 तो 3 लैम्बडा बाय 2d हेला आमे तो d ऑलरेडी पाई जाइछे तो sin थीटा पाई गेला परे थीटा केते हो थीटा हे जिवो sin इनवर्स 3 लैम्बडा बाय 2d ठीक अछि सो एटा निजे करो एंड यू विल गेट आंसर तब ऑप्शन 3 हबो 26.5 डिग्री सो नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा में एटा होची लेंस ऊपर क्वेश्चन देइछि लेंस मेकर्स फार्मूला इफ द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस फॉर रेड लाइट इज 60 सेंटीमीटर एठी कोन कहि दिछि रेड कलर पई से लेंस रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते कहि दिछि 1.5246 देन व्हाट विल बी इट्स फोकल लेंथ फॉर ब्लू लाइट ठीक अछि तमे जानिचे जे गोटे लेंस रो फोकल लेंथ डिपेंड करिवो ऑन द कलर ऑफ लाइट तो रेड कलर पई जदी एफ केते होची 60 सेंटीमीटर बा 60 सेंटीमीटर तो व्हाट विल बी द फोकल लेंथ फॉर ब्लू लाइट तो मन रखो लेंस मेकर्स फॉर्मूला कोन कहूची ना 1/f = mu - 1 होल इनटू 1/r1 - 1/r2 तो देखो ए जो वैल्यूटा अछि 1/r1 - 1/r2 दिस वैल्यू इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन लेंस आमे कलर चेंज कले भी कि मीडियम चेंज कले भी 1/r1 - 1/r2 चेंज हबो नाही दैट इज फिक्स्ड तो हमें फास्ट कोन करबा हमें बाहर करबा जे एई क्वांटिटी रे वैल्यू केते 1/r1 - 1/r2 रे वैल्यू केते केमति बाहर करबा देखो रेड कलर पई म्यू केते कहि दिछि 1.5246 कहि छि आ एफ केते कहि छि 60 कहि दिछि तो 1/60 इज इक्वल टू म्यू r - 1 इनटू 1/r1 - 1/r2 तो ये वैल्यू पके देबा म्यू r वैल्यू पके देला पर सॉल्व करके हम पाई जिबा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/r1 - 1/r2 ठीक अछि एटा पाई गेला परे आमे देखिबा जे ब्लू पे केते हबो तो 1/fb तो फार्मूला कोन आसीबो म्यू b - 1 इनटू 1/r1 - 1/r2 तो ए क्वांटिटी वैल्यू आमे ऑलरेडी पाई छे फर्स्ट स्टेप रे म्यू b केते कहि छी 1.5572 कहि दै छी तो म्यू b रे वैल्यू पके देबा आमे आराम से पाई जाओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fb तो निजे ट्राई करो द आंसर विल बी 56.48 सेंटीमीटर नेक्स्ट जीवा नंबर 27 कोन दै छी ना इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी कॉइल्स इंक्रीजेस 2 टाइम्स द म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बिकम डैश तो मन रखता म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर ऑफ टर्न्स जदि हमें बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर देबा तो डेफिनेटली द म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बिकम 4 टाइम्स सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट वन नेक्स्ट जीवा नंबर 28 it कोन देछि ना assuming that there are 5 × 10⁻28 atoms per cubic meter in copper its Hall coefficient will be dash तो बताता हॉल कोफिशिएंट रो फार्मूला कोन RH = 1/Ne n कोन n होची नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ता माने गोटे यूनिट वॉल्यूम रे माने क्यूबिक मीटर रे केतेटा अछि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड n e कोन e होची द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये जो क्वेश्चन को लिखा है ना क्यूबिक मीटर रे आम पाखे अच्छी 5 × 10⁻28 कपर एटम आ मन रखता ईच कपर एटम गिव्स यू 1 फ्री इलेक्ट्रॉन ठीक अच्छे 1 कपर एटम कैन गिव यू 1 फ्री इलेक्ट्रॉन तो जितेटा एटम थिबो पर क्यूबिक मीटर आमे सेतिकटा फ्री इलेक्ट्रॉन पाइबा पर क्यूबिक मीटर तामाने एक क्वेश्चन रे n र वैल्यू केते कहि दिछि 5 × 10⁻28 कहिछि आ ई केते ई होची -1.6 × 10⁻−19 कूलम सो वैल्यू पुट करला परे ए फार्मूला रे हमें पाइबा आंसर केते -0.125 × 10⁻9 मीटर क्यूब पर कूलम ठीक अछि नेक्स्ट हमें जिबा नंबर 29 कोन देछि ना ए वेसल कंटेन्स 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 4 मोल ऑक्सीजन अछि माने O2 अछि एंड 2 मोल रो कोन अछि आर्गन अछि ठीक अछि at absolute temperature T the total internal energy of the gas mixture is gas देखो एडा होची हमें एक क्वेश्चन केमते करिबा आगो देखो जे O2 जो मॉलिक्यूल अछि O2 मॉलिक्यूल रो नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम केते आसीबो 5 आसीबो ठीक अछि एडा होची गोटे डाई मॉलिक्यूल एटा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल तो F केते आसीबो 5 आसीबो ठीक अछि तो हमें जानि छे जे जदि आम एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करवा ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम रे केते एनर्जी हाफ के बी इंटू टी ठीक अच्छे तो यदि 5टा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थी तो केते एनर्जी
5/2 kBt हम ताने गोटे ऑक्सीजन मोलेक्यूल रे एनर्जी केते आसीबो 5/2 kBt ठीक अछि। तो जदि हम पाखे गोटे मोल ऑक्सीजन थिबो आमे कोन करबा मल्टीप्लाई करबा एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई करबा तो गोटे मोल ऑक्सीजन एटम रो एनर्जी केते हबो 5/2 kb इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू टी तो kb इंटू n एटा हबो r हे जिवो ठीक अछि। तो केते हबो 5/2 rt हेला। तो गोटे मॉलिक्यूल O2 सॉरी 1 मोल ऑफ O2 रो एनर्जी केते हबो 5/2 rt आम पाखे 4 मोल अछि तो केते हबो एनर्जी 4 इंटू 5/2 rt तो केते हला एटा हे जिवो 10 rt हे गेला। तापर देखो आम पाखे अछि आर्गन अछि आर्गन कोन आर्गन होले इनर गैस तो एटा होजे कोन एटा होजे गोटे सिंगल एटॉमिक ला तो मोनो एटॉमिक तो आर्गन रो केते आसीबो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 आसीबो f केते 3 हे जिवो सेमती गोटे आर्गन मॉलिक्यूल रो केते हबो एनर्जी 3/2 kT हबो ठीक अछि। जदि में 1 मोल नै जिबा 1 मोल रे केते हबो 3/2 rt माने k रे हमें n मल्टीप्लाई करदा 3/2 rt आसला तो 2 मोल अछि तो 2 इंटू 3/2 rt तो एटा केते जिवो 3 rt हे गेला। त माने आर्गन रो एनर्जी केते 3 rt आ 4 मोल ऑक्सीजन अछि केतला 10 rt तो मिसले केते जिवो 13 rt सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जिबा नंबर 30 इफ द करंट थ्रू ए रेजिस्टर इज हाफ्ड द वाटेज डेवलप्ड बाय इट विल बी डैश। एटा बहुत इजी क्वेश्चन टा वाटेज माने पावर पचार पावर केते पावर होची I² * r तो जदि में करंट को हाफ कर दबा ताले न्यू पावर केते हे जिवो एटा हे जिवो I² / 4 * r ता माने 1/4 हे जिवो तो रिड्यूस टू 1/4 सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन। तबे नेक्स्ट जिबा नंबर 31 रे कोन देछि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इन ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम केते एटा होछि हाफ kT व्हाट इज के होछि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जेमति मु ए जो नंबर 29 सॉल्व कला में कहली जे गोटे डिग्री ऑफ फ्रीडम को एनर्जी केते होछि हाफ kT तो जेतेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम थिबो से मॉलिक्यूल रो आमे सेथरे मल्टीप्लाई कर दबो हाफ kT दैट इज द एनर्जी पर मॉलिक्यूल ठीक अछि। तो नेक्स्ट आमे जिबा क्वेश्चन नंबर 32 सो 32 नंबर क्वेश्चन कोन देछि ना ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM of amplitude 0.06 मीटर तो ये ए केते कहिला ए कहिला 0.06 मीटर एंड तार टाइम पीरियड केते कहिला एटा हला 6 सेकंड t इक्वल टू 6 सेकंड कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय इट टू मूव फ्रॉम वन एंड ऑफ इट्स पाथ टू ए पोजीशन 0.03 मीटर फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑन द सेम साइड। देखो एक क्वेश्चन मीनिंग कर सपोज एटा होची से पार्टिकुलर मीन पोजीशन दिस इज द राइट एक्सट्रीम एंड दिस इज द लेफ्ट एक्सट्रीम ठीक अछि। एम्पलीट्यूड केते कहिछि एम्पलीट्यूड कहि दिछि 0.06 मीटर त माने मीन पोजीशन रु आइदर एंड र डिस्टेंस केते 0.06 मीटर ठीक अछि। तो इनिशियली पार्टिकल खुथला at one end of the path suppose 8 ला पार्टिकल टा ठीक अछि। तो आमे बाहर करबा जे व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रैवल फ्रॉम दिस एंड टू ए पोजीशन 0.03 मीटर फ्रॉम द इक्विलिब्रियम ऑन द सेम साइड जेहेतु ए पार्टिकल टा राइट साइड रे हम अछि बोली अज्यूम करूचे देखिबा जे ए पॉइंट रु से मूव करबा कोठी की टू ए डिस्टेंस सॉरी टू ए पॉइंट व्हिच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.03 मीटर from the mean position on the same side तने से राइट साइड में 0.03 मीटर नबा नॉट ऑन द लेफ्ट साइड। तो देखो जते बळे पार्टिकल टा तार एक्सट्रीम पोजीशन रु मोशन स्टार्ट करे तो से केस रे आमे कोन लिखिबा x केते हे जिवो x हे जिवो a cos ओमेगा t व्हाट इज ओमेगा ओमेगा होची 2 पाई बाय कैपिटल T इनटू t लिखले एठी। तो देखो x माने कोन डिस्प्लेसमेंट तो जदी से ए पॉइंट रे पहुंचुची तो जदि ए पॉइंट रो डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन केते हला 0.03 हला तो एपोर्ट केते हबो सेम 0.03 आसीबो बिकॉज टोटल केते डिस्टेंस 0.06 ताले आमे x जगह लिखिबा 0.03 इक्वल टू a केते 0.06 ता केते हिजबो cos 2 पाई
बाई टी इंटू स्मॉल टी। तो ये देख 0.03 बाई 0.06 कले हाफ हो, सो हाफ इक्वल टू कॉस 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी। तो हाफ माने आपको लिखिपारि कॉस पाई बाई 3। तो आम ये कौन पाइबा 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी, यहाँ हूँ पाई बाई 3। तो पाई पाई कटिगला आम स्मॉल टी के पाइबा, यहाँ पाइबा टी बाई 6। ठीक अच्छे। तो टी के टी कही 6 सेकेंड, सो 6 सेकेंड बाई 6 करले के आंसर ये आसो 1 सेकेंड। ठीक अच्छे। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट आम सॉल्व करवा नंबर 33। क्वेश्चन कौन देना, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड एट व्हिच वाटर शुड फ्लो इन ए पाइप ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर so that the flow remains laminar at 20 degree Celsius and what is the value of viscosity of water 0.001। तो देखो ये लामिनार फ्लो पाई जो स्पीड दरकार ताको हमें कहबा क्रिटिकल स्पीड, त माने द मैक्सिमम स्पीड अप टू व्हिच द फ्लो रिमेन्स लामिनार बा स्ट्रीमलाइन ताको हमें कहबा क्रिटिकल वेलोसिटी। आ तार फॉर्मूला कौन, तार फॉर्मूला होची रेनॉल्ड्स नंबर इनटू इटा डिवाइड बाय डेंसिटी इनटू रेडियस। ठीक अच्छे। तो मन रखता रेनॉल्ड्स नंबर मैक्सिमम वैल्यू केते हेले द फ्लो कैन रिमेन स्ट्रीमलाइन दैट इज 2000। तो माने 2 इंटू 10 टू द पावर 3। इटा केते कहिछि, इटा हला कोएफिशिएंट विस्कोसिटी केते कहिछि 0.001 कहिछि, त माने इटला 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाय वाटर डेंसिटी केते 10 टू द पावर 3 केजी पर क्यूबिक मीटर एंड रेडियस केते हबो 1 सेंटीमीटर बिकॉज 2 cm इज द डायमीटर। तो 1 cm माने आपको लिखि परबी 10 टू द पावर -2 मीटर। तो ये कौन हम देखो कटिज 10 पावर 3 10 पावर 3 कटिज। तो ये के 2 इंटू 10 टू द पावर -3 प्लस 2 माने 10 पावर -1। तो 0.2 मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट जी नंबर 34। कौन रही क्वेश्चन टा, ए ग्राइंडिंग मशीन व्हील मेजरिंग 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर रोटेट्स एट 2800 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। इट्स कटिंग स्पीड इन मीटर पर सेकेंड इज डैश। देखो ये जो क्वेश्चन को आम केमती सॉल्व करवा, आम जाचे जे v केते v हूँ आर ओमेगा, ओमेगा हूँ एंगुलर वेलोसिटी, v कौन v हूँ लिनियर वेलोसिटी। तो कटिंग स्पीड माने यहाँ हूँ लिनियर वेलोसिटी। तो v केते v हम आर ओमेगा हो। तो आर केते ओमेगा केते ओमेगा हूँ 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी केते कहि दीची, फ्रिक्वेंसी कहि दीची 2800 रिवॉल्यूशंस पर मिनिट। बट आम बाहर करवा व्हाट इज द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड मैंने आरपीएस बाहर करवा। तो पर मिनिट मैंने कौन 60 डिवाइड करदे। तो ये केते हो 280/6 एगेन काटिवा 3 होला, एटा 140। तो फ्रिक्वेंसी में केते पाइले 140/3 पाइगले। तो आर केते आर हूँ देखो ये 20 से डायमीटर। तो केते हम तार रेडियस हम 10 सेंटीमीटर। तो आपको मीटर कले केते हम 10 टू द पावर 10 इंटू 10 टू द पावर -2 2 इंटू पाई केते पाई हूँ 3.141। ठीक अच्छे। एंड फ्रिक्वेंसी केते फ्रिक्वेंसी हूँ 140/3। ठीक अच्छे। आम यदि ए वैल्यू पुट करवा तो आंसर आसीज। सो जो मुझे सॉल्व करी आंसर अलग आसला 29.3 आसला, बट ये आंसर 58.6 देती। आई थिंक यहाँ ऑप्शन भूल अच्छी। अदरवाइज जदि मुझे किसी भूल करते पारे तो यू कैन चेक द सॉल्यूशन जदि मुझे किसी भूल करची, and if you have some other formula then let me know। next question कौन दीची number 35। in a register color band an absence of the fourth band means dash। तो मन रखता जो कलर बैंड थाए, सपोज दिस इज रजिस्टर। तो ये गोटे बैंड फर्स्ट बैंड सेकेंड बैंड थर्ड बैंड थी एंड किसी दूर में फोर्थ बैंड थी। ठीक अच्छे। तो फोर्थ बैंड मीनिंग कौन से हूँ टॉलरेंस लेवल, तमाने केते अमाउंट रे रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज हो पारे। तो जदि गोल्ड कलर थी तमाने द टॉलरेंस इज +-5%। जदि सिल्वर कलर थी तमाने द टॉलरेंस इज +-10%। आउ जदि नो कलर थी एब्सेंस ऑफ एनी कलर ताले सेटा हम +-20%। ठीक अच्छे। तो यहाँ कौन हम आंसर ऑप्शन 4 हम +-20%। So now look at the next question number 36। कौन रही क्वेश्चन टा, ए ट्रांजिस्टर इज यूज्ड इन कॉमन एमिटर कनेक्शन हैज द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एच पैरामीटर्स माने हाइब्रिड पैरामीटर्स। तो ये एच आई ई केते कहि दीची, एटा होची 1 किलो ओम होवा कथा, एटा माने केते 10 टू द पावर 3 ओम।
देन एच एफ ई केते कहि देछि 100 देन एच आर ई केते कहिछि एच आर ई हला 5 इंटू 10 टू द पावर -4 एच ओ ई केते कहिछि 2 इंटू 10 टू द पावर -5 ठीक अछि एंड आर एल केते देछि आर एल देछि 5 किलो बा 5 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम तो से पचारा जे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर इन माने इनपुट रेजिस्टेंस देखो एक्चुअली हाइब्रिड पैरामीटर कॉन्सेप्ट क्लास 12 सिलेबस नहीं सो आई हैड टू सर्च फॉर द फॉर्मूला तो एमती गोटे क्वेश्चन मु पाईगली इंटरनेट रे तो एथिरे कोन देछि ना आमे केमती बाहर करबा द वैल्यू ऑफ आर इनपुट तो सी कहले कोन आमे फास्ट बाहर करबा व्हाट इज द करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर आगे बाहर करबा एआई तो एआई रो वैल्यू केते आसीबो माइनस ऑफ एच एफ ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच ओ ई इंटू आर एल ठीक अच्छे देखो एच एफ ई ऑलरेडी कही दीची लुक एट दिस वैल्यू एच एफ ई कही दीची एच ओ ई भी कही दीची आर एल भी कही दीची तो आम आपको यूज कर ए बाहर करवा ठीक अच्छे आ वंस आम ए आई पाइगला परे आर इनपुट तार फॉर्मूला कौन हम एच आई ई प्लस एच आर ई इंटू ए आई मैंने करेन्ट गेन इंटू आर एल ठीक अच्छे सो यही फॉर्मूलाटा तो मुझे जानती बाकी यहाँ नेट रे अच्छी तो जमती मुझे कहली यही फॉर्मूला अप्लाई कर एंड सब वैल्यू दे दीची and let me know whether you are getting this answer or not. So in this way you can solve the question number 36. So now look at the next question number 37. Question kon dechi na a microphone delivers 300 millivolt to a 300 ohm input of an amplifier. The AC power delivered to an 8 ohm speaker is 18 watt. So what is the power gain of the amplifier and the options are in decibel ठीक अच्छे तो मन रखते हैं डेसिबल टर्म रे बाहर करबा पावर गेन तो तार फॉर्मूला कोन आसीबो द पावर गेन इज इक्वल टू केते हबो पावर गेन इज इक्वल टू 10 log p आउटपुट बाय p इनपुट ठीक अच्छे तो ये ऑलरेडी पी आउटपुट कही दीची केते 18 वाट कही दीची आमको बाहर करबार अछि पी इनपुट केते तो पी इनपुट केमते बाहर करबा देखो इनपुट रे वोल्टेज कही दीची आ कोन कहूची द रेजिस्टेंस इज गिवन तमे v स्क्वायर बाय r पकेतले हमें इनपुट पावर पाई जबा सो वंस यू गेट इनपुट पावर एंड पुट दैट वैल्यू इन दिस फार्मूला आउटपुट पावर केते 18 वाट कही दीची so you will get the answer and let me know whether the answer is 67.7 or something different. Next question कौन देची number 38. A Carnot engine whose low temperature reservoir is at 7 degree Celsius ता माने T2 केते कहिची 7 डिग्री सेल्सियस तो आपको हम लिखि परिबा जदि बे कन्वर्ट करबा केल्विन रे केते हबो हमें ऐड करबा 273 तटा केते हे जो 280 केल्विन हे जो it has an efficiency of केते 50%. It is desired to increase the efficiency to 70%. By how many degrees should the temperature of the high temperature reservoir be increased? तो मन रखता efficiency रो फॉर्मूला कौन 1 minus T2 by T1. So T1 कौन T1 होची हाई टेम्परेचर T2 कौन T2 होची लो टेम्परेचर देखो जिते बड़े T2 थिला 280 केल्विन एफिशिएंसी थिला 50% माने हाफ थिला तो लिख पारे जे हाफ इक्वल टू 1 minus 280 by T1 ठीक अच्छे तो ये फॉर्मूला यूज कला पर हमें पाई जिबा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1 ठीक अच्छे आम T1 पाई गला पर से पचारची जे व्हाट शुड बी द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर सो दैट द एफिशिएंसी विल बिकम 70% ठीक अच्छे ता माने न्यू एफिशिएंसी इटा डैश केते हबो 70% हबो माने 70 by 100 हबो ठीक अच्छे बाकी लिखि परिबा 0.7 तो इटा डैश के हबो 1 minus T2 by T1 डैश ठीक अच्छे तो आम देखा जे आम केते अमाउंट रे देखो इंक्रीज करबा ठीक अच्छे तो एबे में बाहर कर दबा जदी इटा डैश होची 0.7 तो केते हबो T1 डैश बिकॉज T2 तो फिक्स अछि ना केतला T2 280 तो आम एठू T1 डैश पाई जिबा
ठीक अच्छे। तो T1 डैश पाईगले T1 जानीचे सबट्रैक्ट करदे देखा व्हाट इज द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व नंबर 38। नंबर 39 कौन दीजिए थी द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल इज फॉर व्हिच गेट। देखो इनपुट रे ए बी देइची सी ला आउटपुट तो 0 0 एटा 0 आसुची 0 1 0 1 0 1 1 1 1 तो मन रखता और गेट रो फॉर्मूला कौन a प्लस बी इक्वल टू वाई ठीक अच्छे बा इक्वल टू सी। तो 0 प्लस 0 0 बाहला 0 प्लस 1 1 बाहला 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 1 तो यहाँ हूँ और गेट रो ट्रूथ टेबल। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन। तो आज लास्ट क्वेश्चन कौन देइछे बहुत इजी क्वेश्चन टा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E वेरीज विथ डिस्टेंस r फॉर ए पॉइंट चार्ज एस डैश। आम जाने गोटे पॉइंट चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला कौन k/r²। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। सो E हम कौन प्रोपोर्शनल टू 1/r²। सो फ्रेंड्स आज भिडियो आम नंबर 21 ରୁ 40 पर्यंत क्वेश्चन सॉल्व कले एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल द सॉल्यूशंस। सो पुणे में देखा नेक्स्ट वीडियो रे विथ द नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस। सो टिल देन हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय।